aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the analysis of UPSC CSE Prelims GS Paper 1. So let's start with the analysis. The first question states, consider the following statement related to. The first is, Governor of Reserve Bank of India is appointed by the central government. Second, certain provisions in the Constitution of India gives the central government the right to issue the directions. And third, Governor draws its power from the RBI Act. And the right answer for it is answer C. That is 1 and 3 only. Second statement is not the right one. Next question, refer to the with reference to the casual worker employed in India. Consider the following statement. Now in this question you can work from elimination method also. All the casual workers are entitled for employee provident fund coverage, which we call as EPFO. Second, all the casual workers are entitled for regular working hours. And third, government can by a notification specify the establishment of industry pay wages through bank account. Now in this statement, if you will see, first statement, the word that is used in all, so that will not be the right one, because usually statement with all, only, never, 90% it is only a trick to get you confused. So iska right answer will be only second and 3, that is second option. Third question, which among the following step is the most likely to be taken at the economic recession? So iska right hoga, that is option B, increase the expenditure of public project. If you'll see this question, ये economic survey से direct question आपको दिया गया था. Next, consider the following statement. Other things remaining unchanged, what market demands for good might be increased. So market demand बढ़ाने के लिए right अगर हम देखेंगे ये सभी में से, तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द राइट वन विच स्टेट्स, क्योंकि यूजुअली मार्केट में अगर आप देखोगे इकोनॉमी के हिसाब से या तो सब्स्टिट्यूटेड प्राइस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है तो ही लोग दूसरे प्रोडक्ट पे जाएंगे, या फिर कंज्यूमर जो है प्राइस गिर गया है तो ही दूसरे प्रोडक्ट पे जाएंगे. सो 1 and 4, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to urban cooperative banks in India, consider the following statements. It is supervised and regulated by the local board. Second, it issues equity areas and bonds. Third, they brought under purview of बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. ओके, सो इसमें अगर आप तीनों स्टेटमेंट्स देखोगे, जो सही स्टेटमेंट है वो हमारा है सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन बी. Next question, Indian government bond yields are influenced by which of the following? Actions of US Federal Reserve, actions of RBI, inflation of short term interest rate. Right answer ये तीनों ही हमारे, अगर हम बात करें हमारे बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक आपको फॉरेन एक्सचेंज का कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दिया है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट दिया है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट दिया है. क्वेश्चन है कि फॉरेन एफडीआई में डायरेक्टली क्या क्या इंक्लूडेड है. ठीक है, ओनली द वन थिंग दैट इज डायरेक्टली इंक्लूडेड इन दिस, दैट इज फॉरेन करेंसी. सो ऑप्शन डी. हाँ, तो ओनली वन थिंग दैट इज सॉरी, तीनों ही इंक्लूडेड, आई एम रियली सॉरी, तीनों ही फॉरेन एफडीआईज में आते हैं. सो 1, 2, 3 तीनों आपके राइट आंसर्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. अगर करना है तो नेसेसरी क्या स्टेप इंक्लूडेड होगा. सो ओनली वन स्टेप इज इंक्लूडेड इन तीनों ऑप्शन में, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस, देन ओनली मतलब करेंसी का डिवैल्यूएशन अगर आप देख रहे हो तो वो इफेक्ट में आ सकता है, तो ऑप्शन ए इज द right answer. Next, question number 9. Which of the following affects the creation black money in India has been the main cause of the worry of government? So government of India के हिसाब से ये सब में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो black money की वजह से उनको ज़्यादा इफेक्ट हो रही है? That is option D, which states loss of revenue to the state expenditures due to the टैक्स इवेजन. बाकी अगर देखेंगे पॉलिटिकल रीजनलिज्म दिया है और हमारे अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हमारा ऑप्शन डी विल बी दी राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियरी इफेक्ट्स इन इफेक्ट. ये वापस से आपको डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन दिया है. राइट आंसर विल बी क्रिएशन ऑफ न्यू मनी इन द फाइनेंस बजट डेफिसिट.
सो इन्फ्लेशन के रिलेटेड इस बार हमारी इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग. मनी मल्टीप्लायर अगर इकोनॉमी में काम करना है, ये चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो मनी मल्टीप्लायर का मेन वर्क कर सकता है? दैट इज व्हेन यू यूज द मनी, व्हेन इंडिविजुअल और सिटीजन्स स्टार्ट यूजिंग द मनी. बैंक के रिलेटेड. सो राइट आंसर आपका इसमें होगा तीनों में से ऑप्शन सी, विच इज़ इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल. अगर लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तभी इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर स्टार्ट होगा. ये अगेन इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय. डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत बेसिक है. अगर आप देखोगे इसमें से राइट आंसर ओनली भी 1 and 3. डिमांड पुल के पर्सपेक्टिव से बात करें सो 1, 2 and 4 होगा. आई एम रियली सॉरी, क्योंकि एक्सपेंशनरी पॉलिसी हुआ, देन फिजिकल हुआ एंड आपका हायर परचेसिंग पावर हुआ. सो 1, 2 and 4, ए इज योर राइट आंसर. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. With reference to India, consider the following statement. Again, retail investors through demat account can invest in treasury bill, negotiated dealing systems order matching in government securities of the Reserve Bank of India. Then Central Depository Service Limited is jointly promoted by RBI and Bombay Stock Exchange. Right answer इसका only 1 and 2 है. That is option B. Third option is not the right one. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट. वाटर क्रेडिट का क्या मतलब है यहाँ पे? ठीक है, आपको दे दिया था कि इट इज़ अ माइक्रो फाइनेंस टूल. फिर एक दे दिया था ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उसके पर्सपेक्टिव से. थर्ड दिया था इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडी. सो वाटर क्रेडिट से पहले तो वाटर से समझ सकते हो, क्रेडिट मतलब अ सब्सिडी पार्ट को छोड़कर. सो इसका जो है एक्चुअल आंसर जो अगर आप देखोगे, एक माइक्रो टूल के तरफ से यूज़ किया है और एक पुअर लोगों के लिए यूज़ किया है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली. 1 and 3 ऑप्शन. Next, in India, the central bank functions as the lender of last resort, usually refers to the following. So आरबीआई या फिर अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल बैंक की, उसको हम लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? इसके वजह से सेकंड ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी इन दी बैंकिंग एंड हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस. तो जब भी अगर बैंकिंग सिस्टम हमारे बैंकिंग में क्राइसिस है तो उसमें हमारा लास्ट रिसोर्ट क्या बचता है? हम आरबीआई के पास जाते हैं, तब जाके हमारी लिक्विडिटी बढ़ती है. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस. R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है ये कौन सा टूल है, कौन से पर्सपेक्टिव में एनवायरनमेंट के लिए? ठीक है, तो आपको रामसर कन्वेंशन का एक दे दिया था, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस का दिया था, एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का दिया था. तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो आईपीसीसी का है. ठीक है, ये हो नहीं सकता है. वेटलैंड्स के रिलेटेड जहाँ तक अगर आप बेसिक्स अगर आप स्टार्टिंग नोट्स पढ़ोगे तो कहीं पर भी R2 का नाम नहीं दिया है. R2 से आप एक रेफर दे सकते हो, दैट इज़ रिसाइकल रीयूज़ वाला. सो फर्स्ट ऑप्शन है एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री. जो हमारे 3 R's हैं उसमें से सेकेंड R हमारा रिसाइकल होता है. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन ऑफ R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. वाई इज देयर इज अ कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट. कॉपर स्मेल्टिंग पार्ट के बारे में अगर हम देखें तो क्यों इस बार इस ईयर में इतनी थी? सभी ऑप्शंस हमारे सही हैं, तीनों ही ऑप्शंस. They may release the lengthened qualities of carbon monoxide. Copper slag can be the cause of leaching of heavy metals and they may release sulfur dioxide. तीनों ही right options है इसके. Next question number 18. With reference to furnace oil, consider the following statement. तो it is a product of refineries. फिर some industries use it to generate power. It causes sulfur emissions. इसका भी तीनों ही statement right है and therefore it is recently हमारा concern उठा था about this furnace oil. Next question, question number 19. What is blue carbon? ठीक है, ब्लू कार्बन में आपको एक दे दिया था अबाउट ओशंस का, फॉरेस्ट का, पेट्रोलियम का एंड कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो यूजुअली ये तीन जो एक कंफ्यूजिंग था, पेट्रोलियम एंड ये, बट ब्लू कार्बन इज फॉर द ओशन. तो कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम इज द राइट आंसर फॉर ब्लू
carbon. Next question number 20. In the nature, which of the following is most likely to be the surviving on the surface without soil? Soil के बिना कौन सी इन सब में से survive कर सकता है? And इसका right answer is 2 and 3. That is lichen and moss. These are the two only organism which can survive without soil also. Okay. Next question. Question number 21 अगर हम देखें, which one of the following is used in preparing the natural mosquito repellent? ठीक है, इसमें यूजुअली पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन एलिफेंट ग्रास एंड लेमन ग्रास, बट इसका राइट आंसर इज लेमन ग्रास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन क्या था कि ये सब ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर के पार्ट बनते हैं, वो भी फूड चेन ऑफ द ओशंस. ओशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो दो है, एक हमारा साइन बैक्टीरिया है और दूसरा है हमारा फोराबिन फिरा. सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, डायटम्स एंड साइनोबैक्टीरिया. दिस टू आर दी राइट ऑप्शंस जो हमारे ओशन की प्राइमरी फूड चेन का पार्ट बनते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. ये सब में से कौन सी एनिमल्स हैं जिनको अभी रिसेंटली रेड डेटा बुक में वनरेबल के कैटेगरी में डाला है? दूसरी चीज़, दे आर बीन हंटेड और बहुत उन लोग को बेसिकली डैमेज भी है इस बार. सो इनके बारे में एक फीचर बताया था कि दे यूज़ देयर शेल्स, उनका बैक जो है उसको यूज़ करते हैं. दे रोल अप whenever there is harm to them. So roll up वाला अगर आप देखेंगे this year पैंगोलिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. पैंगोलिन के साथ ही सेम फीचर जो है हमारा अनदर एनिमल विथ हिम जो ये चीज़ प्रैक्टिस करता है वो है हैगॉग. सो ये दोनों ही ऐसे एनिमल्स हैं जब भी इनको किसी भी तरह का खतरा रहता है तो दे गेट अ रोल, मतलब एक बॉल के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं. सो टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ. कितने बार यू वोंट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि एक्चुअल बॉल है कि वो एनिमल है. सो इसका राइट आंसर इज 1 and 3. ओके, सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम देखें, विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट. न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कौन से स्टेटमेंट सही है? सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसका, दैट इज़ कि ये 2014 के समिट में साइन किया गया था. नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, ग्लोबल टाइमलाइन के हिसाब से इसको लॉस ऑफ फॉरेस्ट के रिलेटेड ये आर्टिकल है. और उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन 4 कि इंडिया इसका सिग्निफिकेटरी मेंबर है फ्रॉम द इंसेप्शन, जब से ये बनाया गया है. सो 1, 2 and 4 इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Magnetite particulates are suspected to cause neutrodegenerativity problems are generated by environment pollutants. तो ये सब में से कौन से ये मैग्नेटाइट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं? तो ये सभी जो है रिलीज करते हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5 एवरीवन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर. फिल्टर फीडर की अगर हम बात करें सो ऑप्शन सी, ऑयस्टर इज एन ऑर्गेनिज्म विच वी ऑल्सो नोन एज अ फिल्टर फीडर. नेक्स्ट क्वेश्चन. in the case of the following biochemical cycles, the weathering of the rocks are the main source of release of nutrient to the entire cycle. Usually people get confused between nitrogen and sulfur, but इसका actual right answer है phosphorus cycle, क्योंकि इनका ही मेन ये फीचर होता है कि सॉइल को जो रीजनरेटिव इसी के थ्रू मिलता है. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस. ठीक है, डेट्रीवोरस अगर हम बात करें ये सभी में से अगर आप देखोगे ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, दैट इज अर्थवर्म, मेलिपिड्स एंड वुडलीस. ये सब हमारे डेट्रीवोरस हैं. So option 3 is the right one. Next question is the common carbon metric. Again UNEP का one of the plan के बारे में question आया था कि ये सब में से किसने डेवलप किया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया है. So UNEP मतलब वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में होगा. So option is the right answer. Assessing the carbon footprint of building operation around the वर्ल्ड. लोग कंफ्यूज हो गए कि यूएनईपी की मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम कंट्री बेस्ड होती है, कंट्री अपने पर्सपेक्टिव पे करती है, बट नहीं, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्पीशीज दैट एस्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल, उनको भी कुछ मिल रहा है और वो भी कुछ दे रहे हैं. ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन विद ऑर्गेनिजम्स. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
तीनों ही सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल, उनके स्टेटमेंट्स दिए हैं, आर्ट एंड कल्चर का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कच्छा पगटा डायनेस्टी। सेकेंड, इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। अब ओनली है, अगेन ये इससे आप एक एलिमिनेशन टेक्निक से कंसिडर कर सकते हो कि ओनली दिया है तो शायद ये गलत होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ डिज़ाइन गिवन द राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इंस्पायर्स द बिहाइंड इंडियन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज अभी हमने देखा था न्यू पार्लियामेंट बनने की बात हुई थी। सो उस हिसाब से अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। इसका राइट आंसर है 1 and 4। ठीक है, सो 1 and 4 इज़ द राइट आंसर। दैट इज़ ये कच्छा पगाटा डायनेस्टी के टाइम का है और इंडियन पार्लियामेंट इसी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया था जो हमारा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगेन एंशिएंट इंडिया से सबसे बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था कि हमारे ये चारों ही सिटीज़ में से ऐसी कौन सी सिटी थी विच हैड अ वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट, प्रॉपर चैनलाइजिंग वाटर मैनेजमेंट रिजर्वॉयर्स। इसका अगर आप प्रॉपर आईवीसी पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड द राइट आंसर इज ढोलावीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the first quarter of 17th century which of the following factories of English East India Company were located। सबसे पहला इंग्लिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने ब्रॉश में चालू किया था। सो ऑप्शन 1 ओनली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुप्ता डायनेस्टी से क्वेश्चन आया था कि गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन और हर्षवर्धन के राइज के बीच में ये किंगडम को छोड़ के नॉर्दर्न इंडिया में और कौन से किंगडम्स थे। तो सेकेंड वाले दैट इज द परमाज ऑफ मालवा को छोड़ के बाकी सारे हमारे किंगडम्स उस टाइम पे थे। सेकेंड एंड फिफ्थ वन यादवा। ठीक है, सो 1, 3, 4 and 6 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Okay, next question. According to Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagar Empire were expert in which of the areas? Wrestling, astrology, accounting and soothsaying। ठीक है, एंड इसका राइट आंसर ये सभी फील्ड्स में हमारे विजयनगर एम्पायर की वुमेन्स वर वेरी नोन और नॉलेजेबल अबाउट दैट थिंग्स। सो ए बी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन 36 विथ रेफरेंस टू मंडल पाले ऑफ आंध्र प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। सो पिंगाली वेंकैया डिजाइन द 3-color इंडियन नेशनल फ्लैग। देन पटाभी सितारमय लेड द क्विट इंडियन मूवमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम बंगाली टू इंग्लिश। और मैंडब बैल्गस्ते एंड कॉलिन सेट अप दी हेडक्वार्टर्स इन थियोफिजिकल सोसाइटी। इसका राइट आंसर है ये जो मंडा पैले है आंध्र प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट राइट है उनके बुक के हिसाब से कि उन्होंने उसको कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट करके दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिया और वेल नोन फॉर किस चीज़ के लिए वो वेल नोन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, रॉक कट वाला। सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट वन, ऑप्शन डी इज द right answer for it. Next, consider the following statement. इल्तुतमिश दैट इज मेडिवल हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था। इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड इंदस इन द परस्यूट ऑफ द फ्यूगिटिव ख्वाजरेम प्रिंस एंड इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड द मुल्तान अक्रॉस इंदस। ठीक है, तो ये गलत है। अगर हम बात करेंगे थर्ड स्टेटमेंट भी दिया है, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ देवराया विजयनगर एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट राइट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है क्योंकि इल्तुतमिश के टाइम नहीं हुआ था, इनके बाद जब आई थिंक सो हमारे तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे चंगेज़ खान का सीन हुआ था। इस स्टेटमेंट में भी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि तैमूर का जो आना हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे नहीं था। द ओनली स्टेटमेंट विच इज़ राइट इज देवराया के टाइम का। सो ऑप्शन 3 सी इज़ द राइट, सॉरी ओनली 1, चंगेज़ खान रीन ड्यूरिंग द, हाँ ओके, सो ये दोनों रॉन्ग है, ओनली ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेट टू क्रिश्चियनिटी। अगर हम बात करें, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज द ओनली
फाउंडिंग मेंबर, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब हमारे जीसस चले गए थे तो जीसस के बाद के जो सबसे पहले डिसाइपल थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाने की बात की थी, तो वो सेंट फ्रांसिस थे हमारे। उसके बाद सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड चर्च इन डेडिकेटेड टू हिम, ये गलत है, क्योंकि सेंट फ्रांसिस की जो मौत थी वो रोमन एम्पायर के टाइम पे की गई थी बाय वन ऑफ द रोमन किंग्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, सो 1 and 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी will be a right answer of this. Next, with reference of the ancient India, which of the following statement is right? तो मितक्षरा के बारे में बताया है, मितक्षरा और दयाभंगा के बीच का डिफरेंस आपको पूछा है, और इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2। मितक्षरा सिस्टम जो है इसमें क्या होता है, सन क्लेम्स दी प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेर एज दयाभंगा सिस्टम में क्या होता है, इट्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर की सन्स कैन क्लेम दी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर हमारे हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन है। नेक्स्ट 41 की बात करें, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ भावभूति हस्तिमाला एंड स्वेश्वर वारा, अगर आप नेम से भी थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, सो जैन मोंक्स तो हो नहीं सकते। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, टेम्पल आर्किटेक्ट इस नाम के नहीं हो सकते, भावभूत एंड ये सब एक्सप्रेसिव चीज़ें हैं, सो इट विल बी अ प्ले राइट, प्ले राइट विल बी द राइट आंसर ऑफ इट। नेक्स्ट हमारे हिस्ट्री से क्वेश्चन बोल सकते हैं या पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन, मॉन्टेक्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्ड ऑफ 1919 रिकमेंडेड द ग्रांटिंग राइट्स टू वुमेन फ्रॉम द एज ऑफ 21, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये रॉन्ग है, क्योंकि मॉन्टेक्यू क्लेम्सफोर्ड में क्या किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी को इलेक्शंस की राइट दी थी, उनकी प्रॉपर अलग वोटिंग के लिए, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी या अलग इलेक्शन के लिए उनको राइट दी गई थी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 gave women reserve, so yeah ये statement is right, second B option is only the right one. Next, with reference to 8th August 1942 को क्या हुआ था, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिए थे इसको लेके, सो इसका राइट आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट resolution was accepted by the All India Congress Committee, so option A will be the right one. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हु अमंग द फॉलोइंग सिंग्स सॉन्ग ऑफ द प्रेयर, ठीक है, अगेन कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, मोहनदास करमचंद गांधी सरोज और जवाहरलाल नेहरू के टाइम नहीं, बट हाँ सरोजनी नायडू के टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसका राइट आंसर है, गांधी जी ने अपने जेल के जर्नी के टाइम जो भी गाने लिखे उसको रिलीजियस लिरिक्स में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडिया, आपको प्रॉपर सीक्वेंसिंग करनी है, ये इनको प्रॉपर टर्म्स में, साइज में, इनकी जो साइज है, सो इसका राइट है परागना, सरकार एंड सुबह, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि जो विलेजेस या फिर जो टेरिटरीज होते थे उनको अलग अलग इसमें डिवाइड किया था, सो इसका राइट आंसर विल बी द फर्स्ट वन, ओके, A only. Next, which among the following was associated as the secretary of Hindu female school? अभी by the name you can get confused between, या तो क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम हमने फीमेल्स एजुकेशन में बहुत सुना है, तो एनी बेसेंट, इसका राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ओके। नेक्स्ट, इन कंटेस्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार एंड सहगल गुरबख्श सिंह डिल्लो, ये सब का नाम किस चीज़ में याद आता है, सो इसका राइट आंसर आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, बाइकॉट दे दिया, स्वदेशी दे दिया, इसका राइट आंसर इज ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, दे वो ऑल दी ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो द निज़ाम ऑफ आरकोट इमोज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, मैसूर किंगडम का दिया है एंड रोहिलखंड का दिया है, राइट आंसर इज ऑप्शन 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट? तो आपको दिया है कि ये केव्स की ओरिजिन कौन से रिवर के पास से होती है, ठीक है, सो यूजुअली लोगों को कन्फ्यूजन 1 and D में था, इसका राइट आंसर इज अजंता केव लाइज इन दी जॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 21st Feb is declared as International Mother Language by UNICEF. Then the demand of Bangla has to be one of the national language was raised by the Constitutional Assembly of Pakistan. अभी क्या पूछा, ये सब में से स्टेटमेंट कौन सा राइट है? सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, दैट ये डिमांड पाकिस्तान ने इमर्ज किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पर्मा कल्चर फार्मिंग के लेके क्वेश्चन पूछा था कि पर्मा कल्चर फार्मिंग का एग्जैक्ट मेथड क्या है, पर्मा कल्चर फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग का क्या डिफरेंस है. इफ़ यू विल रीड द स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, उसको छोड़ के बाकी तीनों ही राइट हैं. सॉरी, फोर्थ स्टेटमेंट नहीं, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें. थर्ड स्टेटमेंट में क्या बताया, कन्वेंशनल जो है वो इजीली प्रैक्टिस होता है सेमी एरिड जोन पे, बट दैट इज नॉट द थिंग. सो 1, 2 एंड 4 इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम ऑयल को लेके यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट. पहला क्या है, पाम ऑयल इज नेटिव. ओके, पाम ऑयल इज नेटिव टू साउथ ईस्टर्न एशिया. ये क्वेश्चन क्यों उठा है, क्योंकि पाम ऑयल के कल्टीवेशन पे इस बार बहुत न्यूज़ थे. सो नहीं, ये नेटिव स्पीशीज़ नहीं है यहाँ के साउथ ईस्ट एशिया का. दूसरा दोनों ही सही है, क्योंकि वो लिपस्टिक और परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है और बायोडीजल्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं. सो 2 एंड 3 इज़ द राइट वन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इंडस वैली रिवर सिस्टम को लेके क्वेश्चन पूछा था कि ये सभी रिवर्स में से ऐसे कौन से रिवर्स हैं जो बाकी रिवर्स को ज्वाइन नहीं होते बट डायरेक्ट इंडस को ज्वाइन होते हैं. एंड द राइट इज चेनाब, क्योंकि झेलम एंड रवि एंड सतलज ये सब ज्वाइन होते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पॉइंट पे. नेक्स्ट, कुचामन, सरगोल एंड खटू ये सब जो है किसके नाम है इंडिया में, तो इसका राइट आंसर है दे आर द सलाइन लेक्स. इंडिया में इनके नाम है दिदावना, कुचामन, सरगोल, खटू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी, नगावाली वाली, सुब्रनेखायन, वस्मधारा, इसमें से कौन से रिवर्स जो है वो ईस्टर्न घाट से इनका राइज होता है. सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 एंड 4 ओनली, नागवाली एंड वंशधारा. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, सो हमारा ग्लोबल ओशनिक कमीशन के रिलेटेड था. सो ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स द लाइसेंस फॉर seabed exploration, then India received this license, or the rate of earth minerals are present on the seabeds on international water. इसका right answer is 2 and 3 only. Okay, next, ये सब में से ऐसा कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन है जिसमें लीस्ट एफिशिएंट वाटर ज़रूरत है, तो इसका राइट आंसर इज शुगर केन. शुगर केन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्रॉपिकल जोन और हमारा जो ट्रेड विंड्स है उसको लेके क्वेश्चन पूछा था, दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट है इसमें ट्रेड विंड्स को लेके. नेक्स्ट, इंडियन प्रेपरेशन फॉर क्लाइमेटिक स्मार्ट एग्रीकल्चर को क्वेश्चन पूछा था, हमारे तीनों ही स्टेटमेंट राइट दिए हैं इसके कंटेक्स्ट में. नेक्स्ट है, लीव लिटर डिकम्पोज. नाउ प्रॉपर सीजन का फीचर दिया था कि कौन से सीजन्स में जो है ये जो लीव्स जो झड़ जाते हैं वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं. इनकी वेजिटेशन जो है वो जो यूजुअली टॉप ट्रीज होते हैं विद द कैनोपी स्ट्रक्चर, तो लोग इसमें दो चीज़ में कंफ्यूज होगा, एक रेन वाटर और एक कॉनिफोरस. तो इसका राइट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये फीचर्स ऑफ प्लांट्स उगते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेशन ऑफ सवाना को लेके क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ के जो ग्रासलैंड्स हैं, जो स्मॉल ट्रीज हैं, वो जो उगते हैं या वो जो ग्रोथ है उनका, तो वो किस कंडीशंस में उगते हैं प्रॉपर. ठीक है, एंड आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 2, 3 एंड 4. 2, 3 एंड 4 विल बी दी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ग्राउंड वाटर को लेके क्वेश्चन पूछा था. द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक इज मोर देन ग्राउंड वाटर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर्स इन द पोलर एरिया इज मोर देन द ग्राउंड वाटर. इसका सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट ही राइट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो बी, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरिंगा दैट इज ड्रमस्टिक और ड्रमस्टिक को लेके क्वेश्चन पूछा था, टर्मराइट को लेके क्वेश्चन पूछा था. इसमें ऑप्शन 3, 4 एंड 5 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, ब्लैक कॉटन जो है किस वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो किस वजह से फॉर्म होता है. तो ब्लैक कॉटन इज बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक रॉक्स. वॉल्केनिक की वजह से हमारा ब्लैक सॉइल हमें वहाँ पे मिलता है. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, विथ रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन को लेकर क्वेश्चन पूछा था. दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके राइट जाते हैं इसमें. नेक्स्ट,
पोल गार्ड 1 एंड पोल गार्ड 2 जो है वो किस कंटेक्स्ट में आता है या किस कंटेक्स्ट में यूज होता है, ठीक है। सो पोल गार्ड 1 एंड पोल गार्ड 2 जो है ये दोनों ही हमारा इस ग्रोथ ऑफ सॉरी हाँ, सो इसका राइट आंसर होगा डेवलपिंग जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स। ऑप्शन बी विल बी दी राइट वन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 68 प्रेशर कुकर के लिए टेम्परेचर के साथ और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वेट, टेम्परेचर या एरिया। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। वेट ऑफ द लीड इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम और वो होल जिससे लीड में जो होल है ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। नेक्स्ट, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस ये तीनों में से ऐसे कौन से हैं जो आर्टिफिशियल मीडियम से कल्चर कर सकते हैं, तो दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगी, ए एंड बी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 विल बी दी राइट ऑप्शन आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, डीएनए को लेके क्वेश्चन पूछा था कि एडेनोवायरस और डीएनए के बीच का, एडेनोवायरस और रेट्रोवायरस के बीच में डिफरेंस क्या है, और कॉमन जो एडेनोवायरस से आपको कॉमन कोल्ड होता है और एड्स जो है रेट्रोवायरस से होते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट इसका राइट था, दैट वाज B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कैन डिजॉल्व मोर देन सब्सटेंस, क्यों? क्योंकि वो डाइपोलर नेचर में है। वाटर हैज़ अ डाइपोलर इन नेचर एंड देयरफॉर इट कैन अब्जॉर्व, या फिर हम बोल सकते हैं कि या इट कैन वी कैन से डिजॉल्व मोर देन एनी अदर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 72 एलईडी लाइट्स और सोडियम लैंप्स को लेके क्वेश्चन पूछा था। इसका ऑप्शन 1 एंड 3 राइट है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 73 ACE2 किसको लेकर है, तो ACE2 जो है वो हमारा स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज को लेकर ये ACE2 के बारे में बात किया था। नेक्स्ट आपका है बाइसेफनोल जिसको BPA हम बोलते हैं। BPA किस चीज़ की कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, किस टाइप ऑफ प्लास्टिक की, तो दैट इज पॉलीकार्बन इज द राइट वन। Next, which of the following reason is why astronomical distance are measured in light year? It is very simple. It is because the speed of light always remains the same. ठीक है। और जहाँ तक इसकी बात है ट्राइक्लोन्स, तो ट्राइक्लोन्स जो है ये टर्म टॉयलेटरीज जो बनाते हैं उसके कंसिडर में उस केस में आया था कि अगर इसको ज़्यादा लेवल तक आप हीटअप या लाइट में रखोगे तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर यूसेज। ठीक है, तो इसका टॉयलेटरीज ऑप्शन डी विल बी द राइट वन और इसका स्पीड ऑफ द लाइट रिमेन्स दी सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेके। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, A1। नेक्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट को लेके। यूनियन गवर्नमेंट का ऑप्शन सी इज द राइट वन, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी बहुत सिंपल था, आर्टिकल 21 हमारा ऑप्शन सी इज द राइट वन। देन नेक्स्ट हमारे लोकसभा में जो आप MPs बन के जाते हो उसके इलेक्शंस को क्वेश्चन था, ओनली ऑप्शन बी सेकेंड स्टेटमेंट वाज राइट इन इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज टू राइट टू सिटी किस कंटेक्स्ट में था। राइट टू सिटी की अगर हम बात करें तो UN हैबिटेट मॉनिटर्स को इस तरीके से यूज़ किया है। इट मीन्स कि किसी भी तरह का पब्लिक सर्विस अगर चाहिए होगा तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते फॉर मेकिंग अ प्रॉपर सिटी। सो 1 एंड 3 विल बी सॉरी 1 एंड 2 विल बी दी राइट वन। इसमें क्योंकि थर्ड ऑप्शन में बोला गया था कि आप किसी फैसिलिटीज़ को डायरेक्ट हाँ बोल सकते हो बट दैट इज़ नॉट अलाउड, सो 1 एंड 2 इज़ दी राइट वन। नेक्स्ट 82 की बात करें, सो इंडिया की जुडिशियल सिस्टम की बात की थी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट वाज राइट, B2 ओनली। नेक्स्ट 83 जो है हमारा प्रिजनर्स को जो लेके बात की थी कि प्रिजनर्स के राइट के बारे में, अगेन सेकेंड स्टेटमेंट वाज ओनली राइट, सो ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको लेकर कौन सी नोडल एनर्जी एजेंसी है, सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एरिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेजिस्लेशन को लेकर कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ऐसी कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो अगर एप्लीकेशन फॉर वायलेट्स द यूज ऑफ आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 14 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियन पॉलिटी का फेडरल सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा था. अगेन ऑप्शन ए वाज द राइट वन, विच इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफ गार्ड. नेक्स्ट हमारा आया था कि स्टेट कौन सा ऑप्शन है जो स्टेट को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है. दैट इज ऑप्शन वन, A1. देन इंडियन जुडिशरी पे क्वेश्चन आया था. इंडियन जुडिशरी का दोनों स्टेटमेंट राइट है, A एंड B. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के स्टेटमेंट में सिटीजनशिप को लेके क्वेश्चन आया था. अगेन स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट वाज राइट, ऑप्शन वन. ठीक है. नेक्स्ट की बात करें तो हमारा जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो चारों में से कौन सी चीज़ है जो लिबरल डेमोक्रेसी को बता सकता है. दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर. नेक्स्ट 91 क्वेश्चन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वॉयलेट वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन वॉयलेट कौन सा पार्ट बताता है. तो वो हमारा DPSP हमें बोलता है कि यू कांट हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन वन हैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी राइट जो है वो प्रॉपर्टी राइट क्या फंडामेंटल राइट है या क्या चीज़ है. तो उसके राइट टू प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा था. तो दैट इज़ अ लीगल राइट टू एनी पर्सन इन इंडिया. ठीक है. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था ये सब में से कौन सा राइट वन है. दैट इज ऑप्शन बी, सॉवरन डेमोक्रेटिक इन रिपब्लिक, क्योंकि सोशलिस्ट और सेक्युलर तो बाद में अमेंड होके आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स. ऑप्शन डी इज द राइट वन, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट 95 की हल्बी होय एंड क्यू ये क्या है. तो ये बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेज है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट भारत रत्न और पद्मश्री को लेके क्वेश्चन पूछा था. इसका ऑप्शन बी एंड 3 इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए राइट नहीं है, 18 आर्टिकल में ये इंक्लूड नहीं किया जाता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो 97 जो है वो हमारा UNCP को लेके आया था. अगेन 97 का राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो दैट इज ऑप्शन डी. दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है बट उसके प्रॉपर रीजनिंग सही है. देन 98 की बात करें, 98 जो है हमारे लॉरेंस वर्ल्ड सपोर्ट को लेके आया था. ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर. 99 अगर हम बात करें अगेन स्पोर्ट्स को लेके आया था तो ओनली 2. एंड 100 को लेके अगर हम बात करें सो 100 का राइट आंसर इज option D, neither 1 and 2. So that was for today. Thank you so much.